किसान अपनियां किडनियां बेच के पंजाब दे विच बहुत सारी एग्जाम्पल ने किडनियां बेच के अपनियां धीआं दियां शादियां करदे सर। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ये करार तो है, लेकिन ये करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ। ਇੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਆਪਣੇ ट्रैक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। सर, उसका खेतों का जो राजा है ट्रैक्टर वो भी बिकाऊ हो जाएगा। किसान अपनियां किडनियां बेच के पंजाब दे विच बहुत सारी एग्जाम्पल ने किडनियां बेच के अपनियां धीआं दियां शादियां करदे सर। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਵਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਖਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸਰ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨੇ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈ। ਜੋ ਕੌਮ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ फोटो ते जवान दी फोटो, किसान दी खुदकुशी दी फोटो, जवान दी शहीदी दी फोटो लगती है। सर, मरन वास्ते जय जवान ते जय किसान जेड़े ने। मैं ये गल कह रहा सर, बहुत पंजाबी दे शायर ने, सर अद्धा मिनट, पंजाबी दे शायर ने संत राम उदासी, उन्होंने लिखा कि उन्होंने खेत मजदूरां ते किसानां बारे लिखा कि गल लग के सिरी दे जट रोवे, बोलां विचों नीर वगया, लिया तंगली नसीबां नूं फरोलीए, तूड़ी विचों पुत जगया। हुण तूड़ी भी उहदे तो खोई जा रही है, तंगली भी उहदे तो खोई जा रही है। सारे बिल वापस लो, असीं विरोध करदे हां, इह बिल वापस होना चाहिए। पति जी will become श्री history। भगवंत मान जी कि दिल्ली से 100 रुपए बेचते हैं, गांव में 15 जाते हैं, लेकिन आज आप दावे के साथ कह सकते हो कि 100 बेचते हैं तो 100 के 100 जाते हैं। पिछले दिनों ई-नाम प्रोजेक्ट पर खरीद हम लोगों ने शुरू की। पहले 585 मंडियां जोड़ी गई थी, अब आज 1000 मंडियों पर हो रही है, काम हो रहा है। और ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। इस एक्ट के आने के बाद तमाम सारे जिला स्थानों पर, तमाम सारे ब्लॉक स्थानों पर अनेक ई प्लेटफॉर्म खड़े होंगे और हम
उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारदर्शिता से ट्रेड करेंगे। कोई भी ई प्लेटफॉर्म, कोई भी व्यापारी अमानत में खयानत नहीं कर सकता है। आज मंडी का व्यापारी या मंडी का कोई भी कानून किसान को 3 दिन में पेमेंट की गारंटी नहीं देता। आज का यह विधेयक किसान को 3 दिन में पेमेंट होने की गारंटी देता है। जो मैंने पहले कहा था कि व्यापारी बढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ई प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे नौजवान पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। बड़ी मात्रा में रोजगार लोगों को मिलेगा। और इसलिए मैं आप सब लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आने वाले कल में एक्ट के कारण और 1 लाख करोड़ के कृषि अवसंरचना कोष के कारण और किसान की बढ़ती हुई आय के कारण जो परिस्थिति और इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे डेवलप होगा, उससे निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, समृद्धता आएगी, किसान की आय बढ़ेगी। अभी तक हम किसान की सामान्य माली हालत पर विचार करते थे, कुछ योजनाएं चालू करके उसकी हम मदद कर देते थे, लेकिन पहली बार हमारे इस मूल्य आश्वासन और कृषि करार विधेयक के माध्यम से किसान की खेत की फसल की बात शुरू हुई है। मूल्य आश्वासन को हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहकर आलोचना कर देते हैं। यह करार तो है, लेकिन यह करार किसी कॉरपोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है। यह करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है। बात कोई भी राजनीतिक दल करे, बात कोई भी नेता करे, लेकिन किसान के फार्म पर जाकर उसकी मदद कोई नहीं करता। देश में 86% छोटे किसान हैं और यह 86% छोटा जो किसान है, इसकी खुद की अपनी माली हालत भी ऐसी नहीं है कि अपने खेत में निवेश कर सके। और वो छोटा किसान है, उसका खेत का रकबा छोटा है, इसलिए कोई भी प्रोसेसर, उद्योगपति, व्यापारी, स्टार्टअप उसके पास नहीं पहुंच पाता। ये संगठित हों, ये इकट्ठा हों, छोटा छोटा रकबा मिलकर एक एफपीओ के माध्यम से बड़ा रकबा बने और बड़े वॉल्यूम की पैदावार हो और बड़े वॉल्यूम का करार भी हो, तो निश्चित रूप से फायदा किसको होगा? हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी गांव की। इसलिए जो लोग विधेयक की आलोचना कर रहे हैं, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह जो दोनों एक्ट हैं, ये दोनों एक्ट कृषि की अर्थव्यवस्था को बल देने वाले हैं। जहां तक किसान की सुरक्षा का सवाल है, मैं बहुत सारे राज्य सरकारों की बात हुई है। आज किसान के साथ अन्याय होता है तो कौन सा कानून है किसी राज्य में जो उसकी सुरक्षा की जाएगी? लेकिन इन कानूनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अगर अमानत में खयानत करेगा तो उसकी सुरक्षा का प्रावधान इन दोनों एक्टों में किया गया है। मूल्य आश्वासन एक्ट के अंतर्गत करारकर्ता और किसान जब दोनों आपस में करार करेंगे तो ये करार ऐसा करार नहीं होगा कि कोई किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर सके। इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि करार करते समय भूमि से संबंधित कोई भी करार नहीं होगा। अगर किसी ने भी
भूमि से संबंधित कोई भी लिखा पढ़ी करी तो ये कानून का उल्लंघन ही माना जाएगा। ये विधायक में प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर किसान की जमीन पर करारकर्ता उसके साथ मिलकर काम कर रहा है और कोई फसल ऐसी है कि उस फसल के लिए उसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, दोनों की रजामंदी से इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन सकता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर किसान का ही स्वामित्व होगा, करारकर्ता का कोई स्वामित्व नहीं होगा। जिस दिन करार खत्म होगा उस दिन करारकर्ता या तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ कर ले जाएगा, और अगर वो उखाड़ेगा नहीं तो किसान ही उसकी भूमि का मालिक है, वो उस अधोसंरचना का भी मालिक हो जाएगा। जहां तक किसान और करारकर्ता के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो हमने ये व्यवस्था की है कि वो विवाद एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम दोनों पक्षों से कहेगा कि आप एक एक पंच या दो दो पंच नियुक्त कर लो। किसान के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, व्यापारी के भी 2 प्रतिनिधि होंगे, और एसडीएम कहेगा कि आप लोग इसमें सुलह करके आओ। अगर ये पंचायत सुलह कर लेती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं करती तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन के अंदर उसका अनिवार्य रूप से फैसला देगा। ये प्रावधान हमने इसमें किया है। और साथ ही साथ ये भी प्रावधान किया है कि करारकर्ता और किसान के बीच में जो करार है उसमें अगर कोई विवाद खड़ा होता है तो विवाद के विरुद्ध अगर एसडीएम कोर्ट में फैसले के लिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि भाई इसमें किसान की गलती है, तो किसान से अगर वसूली का आदेश होगा तो सिर्फ उतना ही आदेश हो सकता है जितना आदान प्रदान करने के लिए करारकर्ता ने उसे दिया हो। अगर बीज उपलब्ध कराया है, पेस्टिसाइड उपलब्ध कराया है और कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई है, तो कुल मिला के अगर 100 रुपए उसने उपलब्ध कराए तो 100 रुपए ही किसान के द्वारा दे होंगे। साथ ही एसडीएम कोर्ट भी किसान की भूमि के विरुद्ध इस पारित आदेश की जो राशि है उसकी वसूली नहीं कर सकता। किसान की भूमि को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। किसान तय करेगा कि मैं अगले फसल पे दूंगा तो अगली फसल पर ही होगा, लेकिन व्यापारी अगर गड़बड़ करता है तो व्यापारी को 100% करार का पालन करना होगा और उस पर